Assalamu alaikum. So in today's class, we will be starting off with the research processes. Let's just start with the research processes. All right. So what is a research process? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि research process क्या होता है. Basically, as of course the term suggests, research process is the way you process your research. एक एक हर काम करने का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है. रिसर्च को करने का क्या प्रोसेस होता है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इन ऑर्डर टू carry out a research on an experiment or a study. So first of all, for a research process, what you need to have in hand is the aim of the study. And what do we mean by the aim of the study? Aim of the study means you knowing the purpose of the research. Why are you conducting a research? क्या तुक बनता है उस स्टडी को करने का, क्या रीजन है आपका, क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो स्टडी से, आपका पर्पस क्या है, क्या चीज़ आपको लगा कि ओवरऑल आपके कल्चर में अवेलेबल नहीं है, या आपको लगा हो कि किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कम है फॉर एग्जांपल, और या आपको ऐसा लगा हो कि बहुत स्पीडी जो है वो ट्रेंड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो उस वजह से मुझे एक रिसर्च करनी है. कोई भी रिसर्च आप एमलेसली नहीं करते, पर्पसलेसली नहीं करते कि जी आज फारिग बैठे, सुबह उठे, दिल किया चलो आज एक रिसर्च कर लेते, तो बस बेतुके किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर ली. नो, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट. ओके, in order for you to carry out a research, you should have a solid reason, a purpose of why you want to do it. आपने यही टॉपिक चूज क्यों किया, यही वेरिएबल्स चूज क्यों किए एक स्टडी करने के लिए. So it is a straightforward expression of what the researcher is trying to find out from conducting an investigation. A general statement about the purpose of an investigation. So basically, aim is a general statement about the purpose of your investigation. एक स्टडी का, अब अभी हम आगे जो अपने हमारे जो 12 चैप्टर्स हैं, जो 12 स्टडीज जो हैं हमारे सिलेबस में, जो हम पढ़ेंगे एक एक करके, उन तमाम स्टडीज में वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द एम ऑफ द स्टडी. कि भाई रिसर्चर ने के जहन में क्या चीज थी कि जिसकी वजह से उसने इस स्टडी को कंडक्ट किया. व्हाट डिड ही वांट टू अचीव, व्हाट डिड ही वांट टू फाइंड आउट, वेयर वाज द गैप दैट ही वाज सीइंग, और उसने उस गैप को फिल करने की कोशिश की. ठीक है. फॉर एग्जांपल, Milgram in 1963 investigated how far people would go in obeying an instruction to harm another person. So Milgram, which would be our first study to cover, he investigated. The aim of his study was to see कि कितना लोग किस हद तक जा सकते हैं किसी और शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओबेइंग समवन्स ऑर्डर. किसी इंसान की इंस्ट्रक्शंस को ओबे करने की क्या हद हो सकती है कि वो दूसरे शख्स को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे. दिस इज व्हाट ही वांटेड टू फाइंड आउट. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज ह्यूमन नेचर. And this study is actually very interesting. The most one of the most interesting studies in the whole course is Milgram's study. Uske baad we have Bandura. Bandura's study is also part of learning psychology that we are going to cover after social psychology. And Bandura in 1961 investigated that learning can occur through mere observation of a model, and that imitation of learned behavior can occur in the absence of that model. So his study's aim was to investigate how learning can occur, how kids learn basically, how do they observe, okay, how do they learn a behavior just by mere looking at it. तो हम जो चीज हम we being adults, whatever we do, and if a child is noticing us, he would be imitating that. Imitation means copying, right? So the child would be imitating that behavior and learning only by seeing us. So you don't actually have to, वो कहते हैं ना कि बच्चों को अगर आपने कोई चीज सिखानी है तो उस पर खुद अमल करें, practice it on your own. Just don't say them. Just for example, just don't tell children not to lie. If you actually want your kids not to lie to you, do not you yourself stop lying to them. Okay, whatever you want your child to do, stop doing that in front of them and start practicing what you want them to do. If you want them to offer namaz, start praying namaz yourself. ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद नमाज ना पढ़े और आप बच्चों से कहते हो नमाज पढ़ो. तो kids, they don't learn through words, they learn through observation. And this is what Bandura wanted to see if that actually makes sense. कि actually बच्चे जो है क्या वो वाकई किसी मॉडल को देख के इमिटेट करते हैं या इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट. एंड सो ही वांटेड टू find this out, and he carried out a whole study on this. ये भी हम cover करेंगे learning psychology में. Once you know the aim of your study, once you have decided your aim of the study, you now then have to have the hypothesis. ठीक है. I think hypotheses, yes, I think I did, जब when I was covering the syllabus with you in the, I think the very first classes,
उसमें when I was discussing what are we going to cover, that was when I discussed what hypothesis is. ठीक है, so hypothesis, अच्छा ये जो first वाला लिखा है, this is hypothesis, like SIS in the end, and the plural is hypotheses. ठीक है, SES in the end. तो hypothesis क्या होता है? Hypothesis is a precise testable statement. ठीक है, it's a scientific statement, it's a very precise, कोई लंबी कहानियां नहीं होती है, एक precise to the point टाइप का एक statement होता है. This statement is testable. ठीक है, something that you can test on, something that you can measure, something that you can conduct an experiment on basically. ठीक है, predicting a difference between levels of the IV or a relationship between the IV between variables in a correlation. ठीक है, so whether your study is causal in nature or correlational in nature, दोनों में you need to have a hypothesis. Hypothesis basically आपका एक guess होता है, आपकी prediction होती है. ठीक है, कि अच्छा मुझे लगता है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे बैचलर की थीसिस में क्या था, कि मुझे लगा कि भाई मैरिटल डिससैटिस्फैक्शन विल कॉज प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, और मुझे लगा कि अगर कोई जो अपनी शादी से खुश नहीं है, अपने स्पाउस से खुश नहीं है, तो वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. ये मेरा हाइपोथेसिस था. ठीक है, मुझे ऐसा लगा, ये एक प्रिडिक्शन होती है. इट वाज अ प्रिसाइज टेस्टेबल स्टेटमेंट. मेरा इसमें आईवी क्या था, मैरिटल सेटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन, और इसमें मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस. ठीक है, या चाइल्ड अपब्रिंगिंग प्रैक्टिस, व्हाटएवर यू से, या पेरेंटिंग स्टाइल, व्हाटएवर. ठीक है, तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था. नाउ आई हैड टू वेरिएबल्स जिनके बीच में मैं रिलेशनशिप चेक कर रही थी. ऑफ कोर्स मेरी स्टडी कॉजल नहीं थी, बिकॉज मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया था. अगर मैं इसके अंदर आईवी को मैनिपुलेट कर रही होती, अपने हिसाब से चेंज कर रही होती और फिर उसका इफेक्ट देख रही होती डीवी के ऊपर, दैट वाज व्हेन इट वुड बी कॉजल स्टडी. लेकिन ये कोरिलेशनल थी. व्हाई? बिकॉज मैंने ऑलरेडी जो लोग जिनकी मैरिटल डिस्कॉर्ड था, जो ऑलरेडी अपने स्पाउस से ज्यादा खुश नहीं थे, जिनके आपसी ताल्लुकात वैसे ही अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ ठीक नहीं थे, मैंने उन कपल्स को लिया और उन पे मैंने बस ये पूछा कि भाई उनसे एक सर्वे फॉर्म फिल करवाया और उनके ऊपर एक टेस्ट रन किया, एंड देन मैंने उनकी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस को मेजर किया. ठीक है, तो मेरी स्टडी इस वजह से कोरिलेशनल है. Why? Because I did not manipulate anything in here. The way it was existing in the environment, I just picked that up, and I just saw whether there is any relationship between the two. ठीक है, so hypothesis is your prediction, hypothesis is your guess, but this guess is not vague. It is precise, it is measurable, it is testable. ठीक है, so basically, what do you need to have in a hypothesis? A hypothesis must be a clear statement. It should be a prediction. Like I said, it should be testable, something that you can test, something that you can measure. It should be formulated at the beginning of the research process. Yes, this is very important. Hypothesis is always formed at the beginning of the research. ऐसा नहीं है कि रिसर्च पूरी हो गई तो उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्म करें, नहीं. हाइपोथेसिस हमेशा अपनी आपकी रिसर्च स्टार्ट होने, जब आप शुरू करेंगे रिसर्च, उससे भी पहले आप अपना हाइपोथेसिस डिजाइन करके रख देंगे. ठीक है, एंड देन हाइपोथेसिस इज फॉल्सिफाइबल. फॉल्सिफाइबल मतलब इट कैन गेट रिजेक्टेड, जो मैंने आपको अगेन पहले भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि इट इज ओके फॉर योर हाइपोथेसिस टू गेट रिजेक्टेड. वो फॉल्स भी प्रूव हो सकता है, लाइक हैपेंड इन माय केस. ठीक है, वही बैचलर का जो मेरा हाइपोथेसिस था, वो मुझे लगा कि मेरी स्टडी जो है प्रूव करेगी कि हाँ, यस देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ठीक है, लेकिन माय स्टडी प्रूव दैट नो, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन marital discord and child rearing practices, and then these two variables are independent of each other. ठीक है, तो falsifiable मतलब कि मेरा जो hypothesis था वो reject हो गया. ठीक है, so there is actually nothing wrong in getting your hypothesis rejected. ऐसा नहीं है कि अगर आपका at the end of the study hypothesis reject हो जाए तो आप क्या है, आपको मुझे दोबारा से स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं. It is perfectly fine for your hypothesis to get rejected, because only then we get to know कि अच्छा जो चीज हमें लग रही थी या जो मैसेज को लगता है कि हमारी प्रिडिक्शन है, वो चीज स्टडी ने साइंटिफिकली जो है वो रिजेक्ट कर दी कि नहीं भाई ऐसा नहीं है. अच्छा, all right, then we come to an alternative hypothesis. Alternative hypothesis क्या होता है? It's basically again like it is saying एक alternate hypothesis भी आप form करते हैं. It is a testable statement which predicts a difference or relationship between variables in a particular investigation. ठीक है,
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में व्हाट यू नीड टू हैव, एक एक्स्ट्रा हाइपोथेसिस होता है ना, आप वो भी बनाते हैं, और वो हाइपोथेसिस आपके रियल हाइपोथेसिस से, ओरिजिनल हाइपोथेसिस से डिफरेंट होता है, ठीक है। वो कोई दूसरी बात कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा मेरी ही बैचलर की स्टडी का कि for example, the original hypothesis was there is a correlation between marital dissatisfaction and child rearing practices. ठीक है, तो alternate hypothesis क्या होगा, that there will be no correlation between marital dissatisfaction and child rearing practices. बिल्कुल अपने हाइपोथेसिस का ऑपोजिट हाइपोथेसिस बना दूंगी मैं, ठीक है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। होता क्या है कि आपकी स्टडी कंडक्ट होने के बाद कोई एक चीज प्रूव होती है और कोई एक चीज डिसप्रूव हो जाती है। या तो आपका ओरिजिनल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा और ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा, या आपका ओरिजिनल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सॉरी ओरिजिनल जो है यस वो रिजेक्ट हो जाएगा और ऑल्टरनेट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वन कैन गेट एक्सेप्टेड एंड वन कैन गेट रिजेक्टेड। ऑफ कोर्स दोनों एक टाइम पे रिजेक्ट नहीं हो सकते, दोनों एक टाइम पे एक्सेप्ट नहीं हो सकते, बिकॉज ये ऑपोजिट बनाते हैं हम बिल्कुल। अच्छा, now coming to directional versus non-directional hypotheses. अच्छा, this is now something which needs to be explained in the class, क्योंकि इसके लिए मुझे white board वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिर मैं आपको ये बनाना नहीं सिखाऊंगी, बेसिकली पूरी टेक्निक है कि किस तरह आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं और किस तरह नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं और फिर किस तरह नल हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस डिजाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स, और ये सीआईई के एग्जाम्स में आपसे पेपर 2 में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते भी हैं कि एक वो आपको कोई स्टडी देंगे, उससे कहेंगे इसका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना दे, या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना दे, या नल हाइपोथेसिस बना दे, या तीनों बना दे, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी भी मैं क्लास में करवाऊंगी आपको। टुमारो तो यू हैव योर टेस्ट, आई होप यू रिमेम्बर, आपका टेस्ट है कल। कल की एक क्लास में हमारा टेस्ट ही हो जाएगा पूरे में, तो डेफिनेटली नॉट टुमारो, बट देन ऑन वेंसडेज क्लास आई विल फर्स्ट टेल यू ये हाइपोथेसिस किस तरह डिजाइन करते हैं। इन केस आई फॉरगेट, प्लीज प्लीज रिमाइंड मी इन द क्लास कि मैंने आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग हाइपोथेसिस। अगर ये रह गया तो फिर ये ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं और फिर ये चीज पूरी रह जाएगी। ओके, गिव मी अ सेकंड प्लीज। ऑल राइट। Okay, so this is all related to acha na. Coming to operationalization. Operationalization we covered it in quite much detail. ठीक है, the other day हम एक दफा just let's just go through it, so just to see if we have missed out on anything. So operationalization is important, that it is important that the IV is clearly defined or operationalized so that the manipulation of the conditions represents the intended differences. So operationalization may you know what happens. You clearly define or you break down the IV. आपका जो independent variable होता है जो आपने decide किया होता है अपनी study के लिए, उस independent variable को आप break down करते हैं into simpler, measurable, clear terms. ठीक है, जिसको हम बेसिकली ऑपरेशनलाइज करते हैं। वाई? ताकि आप उसको ठीक तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकें और उसको ठीक तरीके से मेजर भी कर सकें। Operational variables or operationalizing definitions refer to how you will define and measure a specific variable as it is used in your study. अच्छा, ऑपरेशनलाइजिंग डेफिनेशन में क्या चीज जरूरी होती है कि आप, या ये क्यों जरूरी होता है ऑपरेशनलाइजेशन इज जरूरी या इज इम्पोर्टेंट कि ताकि आपको पता हो कि आपने स्पेसिफिकली अपने स्टडी में वेरिएबल को किस तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। जैसे जब उस दिन हम क्लास में कर रहे थे, व्हेन आई ब्रोक डाउन दिस आईवी एग्रेशन फॉर यू, ठीक है, तो ऑल ऑफ यू केम अप विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड डेफिनेशंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स फॉर एग्रेशन, ठीक है। और हम सब ने मल्टीपल बिहेवियर्स जो थे वो लिस्ट डाउन किए थे, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, कि फॉर एग्जांपल वी लिस्टेड डाउन लाइक 6 डिफरेंट बिहेवियर फॉर एग्रेशन, ठीक है। लेकिन मुझे अपनी स्टडी के लिए उसमें से कोई 3 चाहिए थे सिर्फ, और मुझे लगा कि यार नहीं, नॉट ऑल 6 आर इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टडीज, जस्ट द 3 वुड बी फाइन, और मेरी स्टडी का जो एम है वो उन 3 से पूरा हो जाएगा, या मेरी स्टडी का एम जो है वो उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा चीजों को स्टडी करूँ। तो मेरी स्टडी में एग्रेशन का मतलब वो फिर सिर्फ वो 3 जो हमने टर्म्स उसको ब्रेक किया था वही हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी चीज जो कि भले एग्रेशन को अदरवाइज डिफाइन कर रही होगी, बट देन दैट वुड नॉट बी पार्ट ऑफ माय स्टडी, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल सपोज वन वांटेड टू स्टडी हैप्पीनेस, हमने हैप्पीनेस को भी इनफैक्ट किया था क्लास में, फिर रिमेंबर टू स्टडी इट वन मस्ट मेजर इट ऑफ कोर्स। अब हैप्पीनेस को हम कैसे मेजर करेंगे, मैंने आईवी तो बना लिया हमने हैप्पीनेस को, हम उसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। सो द रिसर्चर ऑपरेशनलाइजेस हैप्पीनेस टू काउंट स्माइल्स। तो भाई हैप्पीनेस को मेजर करने का एक तरीका बस मैंने ये देख लिया कि अच्छा, हाउ विल आई मेजर हैप्पीनेस इन पीपल, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्माइल्स। तो जितने लोग मुझे स्माइल करते हुए नंबर नजर आएंगे, मैं उन सबके नंबर्स को काउंट करूंगी, एंड देन आई एक जैसे कहते हैं ना हेड काउंट करके, एंड देन आई सी अच्छा दिस इतने सारे लोग जो थे दे वर हैप्पी। तो माय डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इन माय स्टडी वुड जस्ट बी स्माइल। अब नाउ वी नो कि हैप्पीनेस इज मच मोर देन जस्ट स्माइलिंग, ठीक है। हैप्पीनेस लाइक इवन अ डिप्रेस्ड पर्सन कैन स्माइल लाइक अ मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, वी नो दैट, ठीक है। लेकिन स्टिल smiling does generally show that a person is happy. Okay, smiling is a symbol of happiness, right? So बहुत और भी चीजें होंगी जो हैप्पीनेस को डिफाइन कर रही होंगी, लेकिन मैंने अपनी स्टडी के लिए सिर्फ स्माइल को ले लिया, एंड देन दैट ओनली बिकम्स द मेन वेरिएबल, ठीक है, या मेन मेजरेबल वेरिएबल। Okay, so an operational definition specifies the observable and measurable characteristics of a term or concept. For example, depression is defined conceptually as a state of being in which the individual exhibits initiative and has sad and gloomy thoughts. So, अगर for example depression is your variable, तो we know कि observable measure कैसे हो सकता है depression का, by just looking at how sad or gloomy people are, that they're not laughing or they're not mingling or multiple things, ठीक है। तो किस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन इज वन ऑफ द वेरिएबल, हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं एज अ रिसर्चर। सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, वी नीड टू नो कि डिप्रेशन का बिहेवियरल एक आउटलुक क्या होता है। जब एक शख्स डिप्रेस्ड होता है तो क्या उसका बिहेवियर पे चीज जो होती है वो ज्यादा ऑब्वियस होती है। सो मे बी देन इट्स द सैडनेस, द क्राइंग, फीलिंग अनइंटरेस्टेड, फ्लैट इफेक्ट, लेजी वॉक और नो movement at all, ठीक है, नॉट टेकिंग पार्ट इन एनीथिंग, डिप्रेस्ड जो बातें हैं, होपलेस बातें, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स है। उसके बाद वी कैन यूज सर्वे और अ मेजर और अ टेस्ट। फॉर एग्जांपल ये बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री जो है वो डिप्रेशन का टेस्ट है, ठीक है, इट्स अ वेरी रिलायबल टेस्ट दैट वी यूज टू मेजर डिप्रेशन इन पीपल, ठीक है। एंड देन फिजियोलॉजिकल मेजर्स, लेटरलाइजेशन ऑफ ईईजी ब्रेन वेव एक्टिविटी, किस किस तरह अब हमने, अब बीइंग ए रिसर्चर हमने किस तरह डिप्रेशन को मेजर किया, तीन तरीकों से। सबसे पहले हमने डिप्रेशन को जो है ऑपरेशनलाइज कर लिया बाय कीपिंग इन माइंड द बिहेवियरल एक्शंस या बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने उसको ऑपरेशनलाइज कर लिया। उसके अलावा हमने एक और तरीका क्या था डिप्रेशन को मेजर करने का, बाय यूजिंग डिप्रेशन के टेस्ट, ठीक है। थर्ड तरीका क्या था, फिजियोलॉजिकल मेजर्स के, आप बाकायदा फिर ईईजी स्कैन वगैरह करें, ब्रेन एक्टिविटी मेजर करें और उससे फिर आपको उनके लेवल्स का या ब्लड लेवल्स लें या और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू पता चल जाता है कि द पर्सन हैज डिप्रेशन, क्योंकि दो neurotransmitter which is actually responsible for us being happy, ठीक है, जिसको हम हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहते हैं, या वो न्यूरॉन या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हैप्पीनेस के लिए हमारे जो है वो मतलब दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अस हैप्पी, वो अगर उनके लेवल्स हमारे ब्रेन में कम हो जाए तो वी यूजुअली डिप्रेस्ड, ठीक है। तो ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो देयर डेफिनेटली देयर डिफरेंट वेज। अच्छा, now this basically is will be your activity कि you have to use this operational definition, ठीक है, जो आपके on the right दी हुई है, और स्ट्रेस को आपने मेरे लिए operationally define करना है। So I know कि किस whether you are able to do it correctly and then you can get it checked from me। हम एक general discussion बस class में इसका कर लेंगे and I'll see if you're able to do it। So stress is your IV and then you have to um, break it down into measurable operational terms। Then we come to controlling of variables, ठीक है, एक सेकंड। ओके, कंट्रोलिंग ऑफ वेरिएबल में अब हम पढ़ते हैं कि हाउ डू वी कंट्रोल वेरिएबल्स and which variables do we actually need to control, the extraneous variables, because of course extraneous variables are the ones which mess up with your whole experiment or the results or the procedure, ठीक है। So psychologists need to control variables in their studies in order to be more certain about their findings. It is important to control any extraneous variables that might have a consistent effect. These are called confounding variables as they confound, that is, they confuse the results. These variables are the most important to control and may also include situational variables. So ये सारी चीजें हमने already बेटा पढ़ ली है, ठीक है, हमें पता है confounding variable क्या होता है, we know what extraneous variable is, we know what situational variable is,
ठीक है. So I would not just waste time on this. Maybe if you don't remember, which should not be the case, you can just check your previous lecture. The difficulty is to identify which variable it will be important to control before the experiment starts. And this is the game basically. आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है वो होती ही यही है कि आपको ये पता करना होता है कि भाई कौन सा वेरिएबल है जिसको हमने कंट्रोल करना है. इतना आसान थोड़ी होता है कि आपको पहले से पता हो कि लाइट चली जाएगी तो हमने लाइट को कंट्रोल कर लिया. नहीं, बहुत से ऐसे वेरिएबल्स जो है देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट कम इन बिटवीन जो कि आप सोच भी नहीं सकते दैट दे वुड कम एंड देन दे मेस अप विद द रिजल्ट. ठीक है, व्हिच यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. ठीक है, तो द डिफिकल्टी इज टू आइडेंटिफाई व्हिच वेरिएबल इट इज. सही. This is one function of pilot study which I was telling in the last class as well. कि pilot study, the purpose of pilot study is to basically have a test run for your experiment. ठीक है, आप अपना जो आपने पूरा अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाए, पूरा एक्सपेरिमेंटल लेआउट बनाया कि भाई हम अपनी स्टडी ऐसे 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 करेंगे और हम ये पार्टिसिपेंट्स लेंगे और इस तरह इसको कंडक्ट करेंगे. आपने पूरा एक फ्रेम बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया. अब उसको एक्चुअल को में क्या नाम है कंडक्ट करने से पहले यू विल रन अ पायलट टेस्ट. ठीक है, मतलब कि आप एक योर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ पायलट टेस्ट वुड नॉट बी टू सी द डिफरेंस इन रिजल्ट्स बट जस्ट टू सी इफ द प्रोसीजर इज फाइन और नॉट. ठीक है, मतलब कि वही वाली बात है ना, आपने दवा तो इजाद कर ली तो आप उसको ऐसे मार्केट में बेचना नहीं शुरू कर देंगे अंटिल यू डू द पायलट रन ऑफ. जब तक आप उसका एक पायलट नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसको एक सैंपल के ऊपर टेस्ट नहीं करेंगे, उनके आप उसका इफेक्ट नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको इस तरह मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते. एंड सेम इज विद द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, कि आप उसको अचानक से एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर लेंगे. द बेटर इज कि आप उसको, मतलब आइडियल इज कि आप एक पायलट रन करें. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर आप उन प्रॉब्लम्स को पहले फिक्स करें. वो वेरिएबल्स देखें कि अच्छा भाई ऐसे कौन से वेरिएबल्स थे जो हमारे पायलट रन के अंदर बीच बीच में आ रहे थे और हमें तंग कर रहे थे. इसका मतलब कि एक्चुअल स्टडी में फिर हमें उन वेरिएबल्स को बेसिकली कंट्रोल करना होगा. तो वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द कंट्रोल द एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज टू रन अ पायलट बिफोर कंडक्टिंग द एक्चुअल स्टडी. ठीक है, and that is when you can actually फिर for the actual study to conduct फिर आप उसको control कर सकते हैं. A preliminary test of the procedure of a study. अच्छा, controls make sure that the levels of the IV represent what they're supposed to. That is that the difference between them are going to create the intended situations to test the hypothesis. Okay. Controls also make sure. अच्छा, purpose क्या होता है control का? Of course, control का purpose यही होता है कि independent variable सिर्फ और सिर्फ independent variable ही action में आए ताकि आप उसका impact dependent variable के ऊपर clearly देख सकें. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ बीच बीच में ये छोटे छोटे और चीजें तंग कर रही होंगे तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्लियर इफेक्ट नहीं आ पाएगा और आप श्योर नहीं होंगे वेदर द इफेक्ट ऑन डीवी वाज ओनली बिकॉज ऑफ द आईवी. ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आईवी. नहीं सॉरी, कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रा वेरिएबल्स. ठीक है, मूविंग ऑन, कमिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन. दिस आल्सो इज something that we have covered previously in the class. स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर इट इज, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स. बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन is important that it is important that every participant is treated in the same way. If you remember हमने स्टैंडर्डाइजेशन में क्या डिस्कस किया था? that every participant in the study is treated the exactly same way. The procedures are the same, the tests are the same for all the participants, the instructions if there are any are same for all the participants. अगर किसी पार्टिसिपेंट के लिए आप कोई दवा यूज कर रहे हो तो इट इज द सेम फॉर एवरीवन. अगर किसी पार्टिसिपेंट के लिए आप कोई पजल, कोई टास्क, कोई वर्ड प्रॉब्लम अगर फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हो तो इट शुड बी द सेम फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. मतलब कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस और डिस्क्रिपेंसी इन द ट्रीटमेंट अमंग पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, उनको आप इक्वली ट्रीट करेंगे. एंड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स आई मीन एटलीस्ट पार्टिसिपेंट्स इन वन ग्रुप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने 3 ग्रुप्स बनाए अगर पार्टिसिपेंट्स के और उन तीनों को आपका पॉइंट ही यही है कि आपने डिफरेंटली ट्रीट करना है क्योंकि आपने 3 डिफरेंट चीजों का इम्पैक्ट देखना है. तो दैट इज डिफरेंट. उसमें फिर आप कहेंगे स्टैंडर्डाइजेशन लाइक विद इन द ग्रुप वाज द सेम. एक ग्रुप के लोगों को एटलीस्ट आप सेम ट्रीट करेंगे, फिर जो दूसरा ग्रुप है उन सबको फिर आप एक जैसा ट्रीट करेंगे, जो थर्ड ग्रुप है उसको फिर आप एक जैसा ट्रीट करेंगे. ठीक है, one way that it is achieved is by having standardized instructions that give the same advice to every person in the study. ठीक है, the procedure itself also needs to be standardized. This involves having equipment or tests that are consistent. That is the measure that measure the same variable every time and always do so in the same way. ठीक है, so standardized equipment होना, standardized tool होना. अगर मैंने EEG मशीन यूज किया किसी के लिए
ये तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिसिपेंट के लिए ईईजी मशीन यूज कर ली, किसी के लिए ईसीजी यूज कर ली और किसी के लिए ब्रेन स्कैन यूज कर लिया, नहीं। मैं सबके लिए आई विल बी यूजिंग ईईजी मशीन, एटलीस्ट इन दैट वन पर्टिकुलर ग्रुप जिसको मैं ट्रीट कर रही हूँ, या जिसका मेरा पॉइंट है उसको ट्रीट करने का। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब व्हाट है, या अगर मैं किसी के लिए, अगर बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री एक टेस्ट है जो मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री अगर यूज कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं एक के ऊपर बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री यूज कर लूँ, एक के ऊपर मैं पीएआई टेस्ट कर लूँ, ये सारे टेस्ट के नाम है, ठीक है, एक के ऊपर जो है वो मैं एमएमपीआई कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने डिप्रेशन मेजर करना है तो मैं सब अपने पार्टिसिपेंट्स का एक ही टेस्ट से जो है वो डिप्रेशन मेजर करूंगी, ठीक है। ओके, आई वुड लाइक यू टू डू दिस एक्टिविटी। अभी आप, अगर आपके पास नोटबुक है, वो जो कि होनी चाहिए आपके पास, तो आप इस को एक्टिविटी को अभी कर लें। आई विल गिव यू 2 minutes, डू दिस एक्टिविटी नाउ एंड देन वी कैन डिस्कस इट इन द क्लास लेटर ऑन। ओके, सो आई होप यू हैव डन द एक्टिविटी, और नहीं किया तो मे बी बाद में कर लेना। we'll just now move on. So yes, so this is all what we have covered by far. Hypothesis, I have to yet tell you what, how to make a direction and non-direction hypothesis, and how to make null hypothesis. Aim we have covered, and operationalization, controlling of variables, and standardization, what they are, how to manipulate them, how to measure, and what they mean. Okay, this is what we have covered by far. Now coming to the sampling of participants. अच्छा, सैम्पलिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेंट्स को, हाउ डू यू गैदर देम, ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग योर पार्टिसिपेंट्स, इसमें सैंपल कैसे करते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे निकालते हैं, किस तरह आप अपने पार्टिसिपेंट को चूज करते हैं, टारगेट करते हैं, अप्रोच करते हैं। So, like we have done it like a couple of times in the class too, the difference between population versus sample, and they actually at times ask you as well the difference between the two. And you know this also. A population is a group, या तो इसको population भी कहते हैं, target population भी कहते हैं, ठीक है। A population is a group of people or animals with one or more characteristics in common. For example, the population of a country is all the people who live here, ठीक है। तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इज द मास, ठीक है। अगर आपने कहा है कि भाई मुझे पाकिस्तानी के ऊपर रिसर्च करी, तो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग आपकी पॉपुलेशन होंगे, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विल बी योर टारगेट पॉपुलेशन। इफ आई वांट टू डू स्टडी ऑन अमेरिकन, देन द एंटायर, मैं कहती हूँ ऑल द अमेरिकन इन द वर्ल्ड, not just in America, but all the Americans in the entire world will actually be my target population, ठीक है। लेकिन of course it is not possible to hunt all of them for the sake of the research. So what do? We draw out a representable sample, ठीक है। So the sample is the group of people who participate in the study. तो sample कौन होता है? It is the group that you choose to make them participate in your study. They are taken from a population and should ideally be representative of that group so that the findings will be representative. रिप्रेजेंटेटिव किस तरह होनी चाहिए वो उस ग्रुप के लिए? बाय हैविंग अ फेयर नंबर ऑफ पीपल। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ लोगों में से मैं 20 लोग कर लूँ और मैं कह दूँ हाँ जी ये सब लोग रिप्रेजेंट करें, डेफिनेटली नॉट। ओके, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट लाइक 2 करोड़, मेरे ख्याल से आई नीड टू हैव लाइक टू एटलीस्ट 2,000 और 2 लाख पीपल। सही है, 2 लाख भी अगर बहुत ज्यादा है तो आई नीड टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर, ठीक है। ताकि 3-4 लोगों पे स्टडी करके मैं ये नहीं कह सकती कि सारा पाकिस्तानी के ऊपर मुझे स्टडी करनी है, मैंने सिर्फ 10 पाकिस्तानी ले लिया है, उसके बाद मैं कहूँ जी सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, तो नो, this would be very unfair. This is not representative of the entire Pakistani population. For example, of sample of psychology students taken from one section. Sahi?
सो ऑफ कोर्स अगर मुझे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है तो मुझे फिर तमाम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को कंसिडर करने के लिए उन सब में से एक एक सेक्शन निकालना पड़ेगा। नॉट जस्ट कि बस मैं एक पूरे साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में से एक सेक्शन के ऊपर स्टडी करके कह दूंगी कि सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसे, नो। नाउ हाउ डू वी सैम्पल देम, हाउ डू वी टारगेट देम, हाउ डू वी अप्रोच देम, हम उन्हें किस तरह हंट करते हैं बेसिकली इन इजियर वर्ड्स। सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है? सैम्पलिंग टेक्निक्स रेफर टू द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन पार्टिसिपेंट्स फॉर अ स्टडी फ्रॉम द पॉपुलेशन। They are of different types and include first of all opportunity sample। opportunity sample का एक और नाम होता है convenient sample। ठीक है, convenient sample, convenient sampling या opportunity sampling क्या होती है ये हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी सैंपल के लिए आपके लिए समझना क्या आसान है, इसको वर्ड से समझें। अपॉर्चुनिटी या कन्वीनियंट, कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज इजी फॉर यू। कन्वीनियंस मतलब जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट न लगानी पड़े और बआसानी वो काम हो जाए। अपॉर्चुनिटी, जिस चीज की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए आप वो काम करें। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग या कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो है इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें आप जो पॉपुलेशन है जिसको आप टारगेट कर रहे होते हैं वो आपको कन्वीनियंटली अवेलेबल होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी है, स्टूडेंट्स कितने कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं। अब जैसे मुझे अपने बहुत दफा ऐसा हुआ कि जब हम बैचलर की स्टडी अपनी थीसिस कर रहे थे या मास्टर्स का भी जब थीसिस कर रहे थे और हमें रिसर्च करनी थी, तो रिसर्च में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी पॉपुलेशन बना लिया था कि यार हम ये स्टडी ना स्टूडेंट्स के ऊपर करेंगे। और इतना आसान था, वही यूनिवर्सिटी ने बाहर निकले, इतने सारे स्टूडेंट्स मिल गए, स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर ली। कन्वीनियंस, आपको कोई एक्स्ट्रा माइल नहीं जाना पड़ा, कोई आपको अलग से किसी कोई एफर्ट रिसोर्स अपनी यूज नहीं करनी पड़ी इन ऑर्डर टू टारगेट दैम। वेयर एज देयर वर स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने डॉक्टर के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर स्टडी करनी थी, दे हैड टू एक्चुअली गो एंड विजिट वो हॉस्पिटल। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स पे भी अगर स्टडी करनी है तो आप बस एक हॉस्पिटल चले जाए, वहां पे आपको कितने डॉक्टर्स मिल जाएंगे। या आप एक किसी किसी मेडिकल कॉलेज चले जाए, वहां पे तो आपको कितने डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। ठीक है, दिस इज अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, हम इसको पढ़ भी लेते हैं। Participants are chosen because they are available and willing to take part in the study. Opportunity sampling या convenient sampling में you choose participant on the basis of their availability because they're easily available, so you do your study on them. ठीक है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने स्टडी के लिए एक मुश्किल पॉपुलेशन उठाऊं जबकि मैं एक आसान पॉपुलेशन पे भी सेम काम कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं कोई स्टडी जो है उसके लिए इतना रेयर यूनिक टाइप का सैंपल उठाऊं जबकि मैं वो एक आम इंसान के ऊपर भी करके कर सकती हूँ आराम से। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं if I choose this method, meaning that I am only opting for the sample which is there already present. ठीक है, they are available and willing to be part of my study. For example, university students are selected because they are present at the university where the research is taking place. तो अगर यूनिवर्सिटी में मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अपना सैंपल बना लूँ और जी उसी यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं पूरी स्टडी कर दूँ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मेरा आराम से सैंपल भी गैदर हो जाएगा, मुझे कहीं अलग से नहीं जाना पड़ेगा। या मैंने डॉक्टर्स पे स्टडी करनी है तो बस जब मैं किसी हॉस्पिटल चली जाऊँ या किसी मेडिकल कॉलेज चली जाऊँ। या इसी तरह अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चों के ऊपर कोई स्टडी करनी है तो मैं एक स्कूल में चली जाऊँ जहाँ पे 1-2 हजार बच्चे होंगे और बस मैं वहां पे जाके स्टडी कर लूँ, मुझे सारे बच्चे एक ही जगह से मिल जाएंगे, मुझे कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाना पड़ेगा। बस एक दफा एक जगह गई हूँ, वहां पे पूरी पॉपुलेशन मुझे इकट्ठी मिल गई। ठीक है, so what is the strength and weakness of opportunity sample? Is strength, of course, it is very quick and easy, quicker and easier than other methods as the participants are readily available. ठीक है, weakness क्या है? It is likely to be non-representative as the variety of people available is likely to be limited, so they will tend to be similar and the sample would therefore be biased. जाहिर है, मतलब कि अगर मैं एक ही स्कूल से जाके सारे बच्चे उठा लूंगी तो देखो उस स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल अभी सिटी स्कूल ही ले लो। ठीक है, सिटी स्कूल एक हमारा कैंपस है पीएफ चैप्टर, इसमें हमारे पास नर्सरी से लेके और ए लेवल तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब मैं पीएफ चैप्टर में वी नो कि एक नीश है या एक तरह के बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मतलब कि सिटी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक नीश बैकग्राउंड से फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे हमारे पास जो है वो सिटी स्कूल में आते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में इफ आई एम चूजिंग और आई एम सिलेक्टिंग द किड्स एज माय सैंपल फॉर माय स्टडी दैट बिलोंग टू पीएफ चैप्टर ओनली, ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि दे वुड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि एक नीश है ना, एक बड़ा ही एक सेक्शन है ओनली ऑफ द इंटायर चिल्ड्रन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो डेफिनेटली नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो लिमिटेड इनसे भी मुझे डेटा मिलेगा। ठीक है,
सेकंड टाइप होती है वॉलंटियरिंग सैंपल या सेल्फ सिलेक्टिंग. द सेकंड नेम फॉर इट इज सेल्फ सिलेक्टिंग सैंपल. वॉलंटियरिंग सैंपल या सेल्फ सिलेक्टिंग सैंपल क्या होता है? लाइक द नेम आल्सो सेज, जिसमें participants volunteer themselves to be part of the study. What is the method of volunteering, of gathering participants through this method? अगर मुझे अपनी एक स्टडी करनी, ठीक है, मुझे उसके लिए जिस जिस तरह के पार्टिसिपेंट चाहिए मैं क्राइटेरिया लिख दूंगी कि भाई आई वांट 200 पार्टिसिपेंट एजिंग बिटवीन 18 to 25 years, मेल एंड फीमेल्स बोथ, एंड स्टूडेंट्स एटलीस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होने चाहिए वो, और या अंडर ग्रेजुएट्स होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑल बिलोंगिंग टू कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद. अब ये मैंने क्राइटेरिया एक लिख दिया बुलेट पॉइंट्स पे, और मैंने क्या किया, ऊपर अपने रिसर्च का टॉपिक लिख दिया, एम ऑफ द स्टडी लिख दिया, और एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी, और ये मैंने ना पैम्फलेट छपवा दिया. पैम्फलेट छपवा के मैंने ये जगह जगह पे जाके एंड आई जस्ट प्लेस ऑल द पैम्फलेट्स. ठीक है, मे बी एट प्लेसेस वेयर इट इज लाइकेबल के लोग मिल जाएंगे आसानी से इस एज के, जैसे कि अगेन यूनिवर्सिटीज में देयर आर मोस्टली स्टूडेंट्स जो कि 18 to 25 ईयर्स के होते हैं. ठीक है, ऑल्सो द अच्छा 18 25 ईयर्स के होते हैं ऑफ कोर्स, एंड मे बी दैट इज व्हेन कि जब मैं मॉल्स में भी लगा दूंगी, ठीक है, या हॉस्पिटल्स के बाहर लगा दूंगी, ठीक है, या किसी भी ऐसी, या कॉन्सर्ट्स के बाहर लगा दूंगी ऐड, कि ताकि आने जाने में जो भी कोई अगर देखता है फॉर एग्जांपल इस मेरे पैम्फलेट को, तो वो उसको देख के और मुझे उस कांटेक्ट नंबर पे अप्रोच कर दे. इसका क्या मतलब है, इफ यू रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है, ऑन द पैम्फलेट. अच्छा, आई कैन ऑल्सो गिव अ न्यूज़पेपर एड, या मैं फेसबुक एड लगा दूं, उसको स्पॉन्सर कर दूं, या मैं उसको न्यूज़पेपर में ईमेल के थ्रू, मतलब आई कैन यूज एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एज वेल जस्ट टू रीच अ वाइडर ऑडियंस. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मेरी अपनी कोई मेहनत नहीं लगी. मैंने बस, मेरी मेहनत इतनी ही थी कि मैंने एक पैम्फलेट, एक एड बनवाया, और मैंने उसको जगह जगह लगा दिया, या मैंने लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया. और जब ये टारगेट राइट पॉपुलेशन को पहुंचेगा, दे विल रीड माय एड. ठीक है, एंड इफ दे वुड बी इंटरेस्टेड आफ्टर लुकिंग एट द एम ऑफ द स्टडी, द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, एंड इफ दे वुड बी फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, एंड इफ दे वुड अगेन बी विलिंग टू, वो मुझे उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, एंड देन दे वुड वॉलंटियर देमसेल्व्स टू बी पार्ट ऑफ द स्टडी. दिस इज व्हाट वॉलंटियरिंग सैंपल इज. तो मैंने उनको जाके नहीं अप्रोच किया, मैंने सिर्फ एक एड लगा दिया था, और जो लाइकेबल लोग थे उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया. ठीक है, अच्छा. So volunteer sampling is a sampling technique where participants self-select to become part of a study because they volunteer when asked or respond to an advertisement. Participants are invited to participate, for example, through advertisements via email or notices or pamphlets, whatever. Those who reply become the sample. तो तरीका यही होता है कि आप सैंपल को पार्टिसिपेंट कैसे अप्रोच करते हैं, थ्रू एड्स, और जो आपके पास आ जाएंगे दैट दोज वुड बी योर पार्टिसिपेंट या योर सैंपल बेसिकली. अच्छा, सो व्हाट आर सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ वॉलंटियरिंग सैंपल. सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, रिलेटिवली इजी, ऑफ कोर्स आपकी अपनी कोई कॉस्ट एनर्जी वगैरह नहीं लग रही होती है, बिकॉज द पार्टिसिपेंट्स कम टू यू योरसेल्फ themselves. They are also likely to be committed, for example willing to return for repeat testing. ठीक है, जब कोई शख्स आपके पास खुद से आता है अपनी मर्जी से, तो उसके अंदर कमिटमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू समवन जिसको आप अप्रोच करें और उसको राजी करेंगे अपनी स्टडी के लिए. दिस इज वेरी नेचुरल, मतलब समथिंग दैट यू कमिट योरसेल्फ. आप खुद से अपनी मर्जी से वॉलंटियर कर रहे होंगे ना, आपने ऐड पढ़ा, आपको लगा कि नहीं यार यू कैन डू इट, ठीक है, तो आप खुद से उनको अप्रोच करेंगे. ठीक है, कि अच्छा भाई हमने आपका ऐड पढ़ा, हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो नाउ आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर स्टडी, एंड दैट आई वांट टू टेक और गिव माय 2 cents इन दिस, या अपना जो भी है, वाला आई एम फ्री एंड आई कैन डू इट. तो उस शख्स के अंदर जो खुद आपके पास चल के आएगा और आपसे कहेगा आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर स्टडी, उसके अंदर कमिटमेंट ज्यादा होगी. मतलब उस शख्स के ज्यादा, उसके चांसेस आपकी स्टडी को छोड़ के जाने के कम होंगे, क्योंकि वो वाली बात है ना, जबान पे बात आ जाती है कि यार हमने जबान की. ठीक है, हमारा एक होता है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ कमिटमेंट. आपने किसी को जबान की है कि यार हम आपकी स्टडी में पार्ट लेंगे, तो हाउ कैन आई स्टेप बैक, मैं बीच स्टडी में ऐसे छोड़ के तो नहीं जाऊंगा. तो कमिटमेंट सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है ना, वो वॉलंटियरिंग सैंपल का होता है, क्योंकि वो खुद आपके पास आते हैं, उन्होंने खुद आपको कहा होता है, आपने नहीं उनको कन्विंस किया हुआ होता, वो खुद अपनी मर्जी से आपके पास आते हैं. तो देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ देम लीविंग योर एक्सपेरिमेंट इन द मिडल ऑफ. ठीक है, वीकनेस क्या होती है, अगेन लाइकली टू बी नॉन रिप्रेजेंटेटिव. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एड जो है वो किन लोगों तक पहुंचा, ये डिपेंड करता है. अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के बाहर सिर्फ वो एड लगा रही हूँ, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के ही लोग होंगे जो फिर मेरे पास आ रहे होंगे. ठीक है,
या हो सकता है अगर मैंने ये एड जब वो जून जुलाई में लगाया तो मेरे पास सिर्फ वही लोग आए जो कि उस टाइम पे फ्री थे, और मे बी वो लोग जो कि बिजी थे और मेरा सैंपल और अच्छा बना सकते थे वो लोग नहीं आ सके बिकॉज ओनली दे वर बिजी. So just the people who had time and had came. So of course they're not representative again of the whole population. ठीक है. The third type is random sample. अच्छा, तो इसके बाद what I'll do is, अच्छा, I see students joining me. You have a question, Suzanne? मिस अटेंडेंस लगवानी थी. Attendance would be at 11:20. अच्छा हाँ यार 11:20. अच्छा ठीक है बेटा, वेट करो, मैं अटेंडेंस लेती हूँ. मैं एक दफा मैसेज कर दूँ ग्रुप पे सो दैट एवरीबॉडी जॉइंस एंड देन आई टेक इट. एक मिनट. All right, so starting like resuming from random sampling, after which I'll just end this class क्योंकि मेरा आज का जो goal है वो पूरा हो चुका होगा. So random sampling is very random. ठीक है. In random sampling, what you do is basically you give every member of the population here. Notice the word population that I'm using. ठीक है. Every member of the population equal chance of getting selected. ये बिल्कुल जैसे वो लकी ड्रॉ नहीं होता, कुरानदासी होती है कि जितने लोग होते हैं उन सबको यू गिव इक्वल चांस कि वो सब अपने नाम की चिट्स जो है वो ड्रॉ बॉक्स में डाले, एंड देन यू शेक दैट ड्रॉ बॉक्स एंड यू पिक आउट 1 चिट और 10 चिट्स और व्हाटएवर. ठीक है. तो what did you do? You basically give equal chance and equal opportunity for all of the participants or all of the candidates to be selected or to be won. ठीक है. तो रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल इसी तरह होती है कि आप जितने लोग पॉपुलेशन में होते हैं गिव ऑल ऑफ देम द इक्वल चांस टू टेक पार्ट इन योर स्टडी, एंड देन व्हाट यू डू इज आप इसी तरह एक लकी ड्रॉ करते हैं, एंड देन यू चूज maybe 200 people or whatever the number of participants you want from that population, so that nobody complains कि यार हमें तो बताया ही नहीं, हमें तो चांस ही नहीं मिला. ठीक है. So random sampling is a sampling technique where every member of the target population has an equal chance of being selected. This involves identifying everyone in the target population and then selecting the number of participants you need in a way that gives everyone an equal chance of being selected. मतलब कि आपने अखबार में और इंटरनेट पे और हर जगह आपने बम्बार्ड कर दिया अपना एडवर्टाइजमेंट ताकि हर किसी तक आपकी टारगेट पॉपुलेशन में पहुंच जाए. ठीक है. एंड देन आप उन सबको कहते हैं कि अच्छा भाई जो जो पार्ट लेना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन लिंक के अपना नाम रजिस्टर करवा दे और फिर हम आपको जो है वो कांटेक्ट कर लेंगे इफ यू बी सिलेक्टेड. इसी तरह जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं आती हैं, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम चली थी एक जमाने में, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स को इक्वल चांस मिला था कि सब लोग जो है वो लैपटॉप विन कर सके. सही. तो ऑल द स्टूडेंट्स हु वर मीटिंग द सर्टेन क्राइटेरिया दे ऑल एंटर्ड इन द पूल और उसके बाद उनको सिलेक्ट कर लिया गया. तो दिस इज बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग आई कैन से. All members of the population that is possible participants are allocated numbers and a fixed amount of these are selected in an unbiased way. For example, by taking numbers from a hat. ठीक है. वही जैसे कि हैट में से, बॉक्स में से, बोल के अंदर से आपने सबके चिट्स डाल ली और बस आपने उसमें से 200 लोगों ने चिट्स डाली, आपने उसमें 20 नाम ड्रॉ आउट कर लिए. ठीक है कि भाई ये वो लोग हैं जो पार्ट लेंगे. तो एटलीस्ट जो लोग नहीं भी सिलेक्ट हुए उनको ये शिकायत नहीं होगी कि यार आप बायस हुए थे और आपने हमारा नाम सिलेक्ट नहीं किया. मतलब दे न्यू कि देयर चिट वुड बी देयर, it was just their luck that they did not get selected. ठीक है. अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या होती है? इट इज लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव. अच्छा, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि बहुत ज्यादा इसके रिप्रेजेंटेटिव होने के चांसेस होते हैं. व्हाई? बिकॉज यू बेसिकली इन्वॉल्व द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन. सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. इट्स जस्ट दैट यू पिक आउट ऑन अ फ्यू. ओके. और व्हेन यू पिक आउट ऑन अ फ्यू फ्रॉम अ वेरी डाइवर्स सैंपल, तो ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस कि आपके पास काफी रिच और मिक्स्ड पॉपुलेशन आएगी. ठीक है. Weaknesses in reality, everyone may not be equally likely to be chosen. For example, if they cannot be accessed. अच्छा, ये भी हो सकता है कि चांसेस हैं बहरहाल जो भी है कि 100% आप पूरी टारगेट पॉपुलेशन को नहीं अप्रोच कर सके. बहुत से लोग होंगे जिनके पास आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होगा, आज भी वो अखबार नहीं आते होंगे उनके पास, आज वो किसी बड़ी इस्लामी एरिया में रहते होंगे कि जिनको नहीं वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन हो सकते थे, बट बिकॉज यू ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और मीडियम्स और मोर तो आप नहीं उन तक पहुंच सके. तो ऑफ कोर्स अगेन यही है कि इट्स नॉट दैट 100% ऑफ द टाइम्स यू अप्रोच 100% ऑफ द पीपल. ठीक है. और इफ मेनली वन टाइप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल गर्ल्स हैपन टू बी सिलेक्टेड, ये भी हो जाता है रैंडम सैम्पलिंग में कभी कभार इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली
कि आपने आपके पास टारगेट पॉपुलेशन आ गई, अब आप उसमें से जब चिट्स ड्रॉ आउट कर रहे हैं ना लकी ड्रॉ की तरह, तो इत्तेफाक था कि सारी लड़कियां चूज हो गई। अब रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, एक दफा जिसका नाम निकल के आ जाए ना, फिर देन दैट आप उसको अनडू नहीं कर सकते, मतलब दैट पर्सन हैज टू बी पार्ट ऑफ द स्टडी। इसमें फिर आप, क्योंकि फिर वो बायसनेस हो जाएगी, अगर आप कहेंगे है सारी लड़कियां आ गए, चलो नहीं दोबारा से ड्रॉ करो, नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। या जी अचानक से सारे लड़के आ गए, या सब आपके पास बच्चे शुरू हो गए, 80% बच्चे आ गए, सिर्फ आपके पास 20% बड़े आए, तो अजीब। आपके पास ना एक टाइप की पॉपुलेशन आने के भी चांसेस होते हैं इसके अंदर, कि कोई इंसिडेंटली जिसका भी नाम निकाला वो लड़की ही निकली, या जिसका भी नाम निकाला वो बच्चे का ही नाम आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, so this is the activity that you will do following this these sampling methods. ठीक है, we can do it in the class as well, and here I would end my today's lecture, क्योंकि यही मेरा आज के lecture का goal था. If I'd be in the school and conducting the lecture, so I would be doing it till here. All right, data and data analysis is then the new chapter that will start on Wednesday. Thank you everyone. If you have any question while listening to the lecture, please write it down on your notebook, and when we meet on Wednesday, you can then ask me the question and I'll solve your query. Thank you so much. Take care. Bye.